हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। बट बिफोर स्टार्ट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, सो यू कैन चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर टू मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर ऑन द above link given in I button. And now, without further delay, let's get started. So as you know, in the last video we have discussed about simple cell in the type of cell, and today in this video we'll start dry cell, which is the another type of cell. As you can see on the board, it is a kind of cell that converts chemical energy into electrical energy without using liquid electrolyte. मतलब इसमें कोई भी liquid electrolyte use नहीं होता है. Hence, it is known as dry cell, and it is also known as Leclanche cell. In the last class, the cell which we have discussed, that is simple cell, we have seen that in simple cell, the electrolyte was dilute sulfuric acid, which was a liquid electrolyte. लेकिन यहाँ पे जो electrolyte present होते हैं to flow the charges, वो होते हैं paste के form में. So let's have a look of dry cell. So in this diagram, you can see in the middle of this container, a carbon rod is present. After this carbon rod, manganese dioxide, which we know as MnO2, and powdered carbon is present in a form of paste. These are the electrolyte present in this cell, and hence this is known as dry cell. यहाँ पे dry cell जो electrolyte contain कर रहा है, it is not present in liquid form, but it is present in the paste form. That's why it is known as dry cell. Next जो ये ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं, दिस आर नोन एज अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है बैरियर बनाना इन बिटवीन दिस जिंक कंटेनर एंड द कार्बन रॉड, and it also absorb the electrons or the charges to flow from positive to negative. Last one is the zinc container. ऊपर की साइड में ये कैप है, that is known as brass cap, जो कि वर्क करता है as positive terminal, and ये जो end है, this end is known as negative terminal. Here, zinc container acts as anode, and ये जो carbon rod है, and this is known as cathode. Here, zinc container is known as anode क्योंकि यहाँ पे zinc container electrons को lose करेगा, whereas this electrolyte will gain the electrons which is coming from the zinc container. तो इसलिए zinc container यहाँ पे anode की तरह act करेगा, whereas carbon rod क्या करेगा, cathode की तरह work करेगा. यहाँ पे manganese dioxide एंड पाउडर्ड कार्बन के प्रेजेंस का एक और भी रीजन है, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली द इलेक्ट्रोलाइट विच इज प्रेजेंट इन द पेस्ट फॉर्म, बट मैंगनीज डाइऑक्साइड एक डीपोलराइजर की तरह भी काम करेगा. ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड works as a depolarizer. तो ये एक्चुअल में करेगा क्या? In the last class we have studied two defects in simple cell, जिसमें से एक डिफेक्ट था पोलराइजेशन. पोलराइजेशन में बेसिकली होता ये है कि जो कॉपर प्लेट थे वो कवर हो जाते हैं, रैप हो जाते हैं बबल के फॉर्मेशन से, हाइड्रोजन बबल के फॉर्मेशन से, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉपर प्लेट इज अनेबल टू प्रोड्यूस द फ्लो ऑफ चार्जेस. लेकिन यहाँ पे जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ये क्या करेगा, जो रैपिंग होती है बबल्स की उसको स्टॉप करेगा, एंड हेंस इट विल वर्क एज अ डीपोलराइजेशन. सो मैंगनीज डाइऑक्साइड एक तो एक पेस्ट के फॉर्म में काम कर रही है, एक इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के फॉर्म में काम कर रही है. Along with that, it is also working as depolarizer in this dry cell, so that it will overcome the effect of polarization, and hence the dry cell will work longer. पाउडर्ड कार्बन का एक और जो पर्पस है वो है मॉइस्चर को ट्रैप करना, अब्सॉर्ब करना. यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड.
The purpose of ammonium chloride is to form a barrier between the anode and cathode. ये एक बैरियर की तरह काम करेगा. So ammonium chloride works as a barrier though it allows electrons to flow from anode to cathode. So इसका फंक्शन बेसिकली ये है कि फर्स्ट तो ये एक बैरियर की तरह काम करेगा जिससे ये जो कैथोड और एनोड है वो आपस में सेपरेट रहेंगे, बाउंड्री क्रिएट करेगा. एंड दूसरा इसका पर्पस ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जिंक कंटेनर लूज करेगा तो उसको इजीली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके साथ मिक्सड कराने का इसका पर्पस ये सर्व करेगा. हियर MnO2 प्लस कार्बन, ये दो कंपाउंड प्रेजेंट होंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे. इस ड्राई सेल का जो वोल्टेज होगा, वो रेंज करेगा 1.25 से लेकर के 1.5 वोल्ट के बीच में. इसका जो वोल्टेज है वो रेंज करेगा बिटवीन 1.25 to 1.5 volt. And we are very much familiar about dry cell because we use dry cell in a lot of aspect. हम अपने वॉल क्लॉक्स में, टॉर्चेस में, रिमोट्स में और डिफरेंट गैजेट्स में लाइक टॉयज में, इलेक्ट्रिकल टॉयज में इस तरीके के सेल यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड. इसको प्राइमरी सेल भी कहते हैं. This cell is also known as primary cell because ये सेल जो है रीयूजेबल नहीं है. एक बार जिंक कंटेनर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस किया एंड उसकी वजह से जो फ्लो ऑफ चार्जेस से करंट प्रोड्यूस हुए उसके बाद ये सेल डेड हो जाता है. So that's why it is also known as primary cell. ड्राई सेल की एक बेनिफिट है कि इसमें पोलराइजेशन नहीं होती है बिकॉज पोलराइजेशन गेट्स स्टॉप्ड बाय द कंपाउंड मैंगनीज डाइऑक्साइड जो कि एक डीपोलराइजर की तरह काम करता है इस सेल में. बट दिस सेल हैज अ डिफेक्ट विच इज नोन एज लोकल एक्शन. हमने लोकल एक्शन वाला डिफेक्ट जो था लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि लोकल एक्शन वाले डिफेक्ट में होता क्या है कि जो भी सेल होते हैं वो अपने चार्जेस को डिस्चार्ज करने लगते हैं इवन दो दे आर नॉट इन यूज. तो अगर हम लोग ड्राई सेल को फॉर अ लॉन्गर पीरियड विदाउट यूज रख देते हैं सो बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट विच इज नोन एज लोकल एक्शन द सेल डज नॉट वर्क क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने चार्जेस को क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा. तो इसमें डीपोलराइजेशन तो नहीं हुई. एक डिफेक्ट जो कि सिंपल सेल में और प्रेजेंट था वो नहीं हुआ लेकिन लोकल एक्शन डिफेक्ट इज स्टिल प्रेजेंट इन दिस ड्राई सेल. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो सेल. सो ये फोटो सेल्स में होता क्या है, सपोज दिस इज अ सोलर पैनल. You might have seen solar panels on the street lights. तो सोलर पैनल्स में बहुत छोटे छोटे से डॉट्स, वाइट कलर के डॉट्स दिखते होते हैं. These white cells are known as photocells. These photocells are also known as solar cells. Photocells or solar cells. And इसको हम कहेंगे सोलर पैनल. Nowadays, we are using a lot of solar panels to produce electricity. इसका जो working principle होता है, this is quite different from the previous cells, simple cell and dry cell. Simple cell and dry cell, they uses chemical energy and convert it into electrical energy. But यहाँ पे ये जो solar cells या photo cells होते हैं, they are a kind of sensor. जब इस पे illuminating light पड़ती होती है, they start activating itself and वो activate करके जो
लाइट एनर्जी होती है उसको ट्रैप करते हैं एंड ट्रैप करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. दिस गेट्स कनेक्टेड विद द बैटरी. दिस गेट्स कनेक्टेड विद द बैटरी. इनका काम ये होता है कि जब इन पे लाइट, इल्यूमिनेटिंग लाइट जब इन पे पड़ती होती है तो उस वजह से ये जो फोटो सेल्स होते हैं एक्टिवेट होते हैं एंड एक्टिवेट होकर के उस लाइट एनर्जी को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. बाय चेंजिंग देम इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे स्टोर दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सच टाइप ऑफ बॉक्सेस व्हिच वी नोन एज बैटरी. आजकल जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं उसके ऊपर हमने देखा है कि सोलर पैनल्स लगे होते हैं. सो दे डू नॉट नीड एनी अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे गेट चार्ज बिकॉज ऑफ द सोलर एनर्जी एंड दे ग्लो इन द इवनिंग टाइम. आजकल सोलर कुकर्स या बहुत सारे ऐसे अप्लायंस हैं लाइक कैलकुलेटर्स, दे रन फ्रॉम द सोलर एनर्जी ओनली. तो सोलर सेल्स का काम ये होता है, दे आर अ काइंड ऑफ सेंसर एंड उनका काम ही यही होता है कि जब इल्यूमिनेटिंग लाइट उन पे पड़ती होती है तो उस लाइट एनर्जी को वो चेंज कर देते हैं केमिकल एनर्जी में. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायनामो. डायनामो इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. केमिकल एनर्जी. As we know that dynamo convert mechanical energy into electrical energy. इसकी working principle you can see on the board in this diagram. डायनामो में बेसिकली दो मैग्नेट होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं एंड बिटवीन दिस टू मैग्नेट्स ये एक स्पिनिंग कॉइल होता है जो घूमता होता है इन बिटवीन दिस टू मैग्नेट एंड ड्यू टू इट्स मूवमेंट in between these two poles of the magnet it has mechanical energy. ये mechanical energy due to the help of this commutator convert हो जाती है electrical energy and this voltmeter can show the electrical energy which it is generating by converting this mechanical energy into the electrical one. So this is the whole working principle of the dynamo जिसमें वो क्या कर रहा है, ये spinning coil जो है, ये spinning coil जो कि कम्यूटेटर से कनेक्टेड है, ये बीच में किसके घूम रहा है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के. लास्ट हमारे जो मैग्नेट चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के फ्लो की वजह से एक मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है. वैसे ही जब हम दो मैग्नेट के बीच में किसी कॉइल को रोटेट करते हैं तो ड्यू टू दैट मैकेनिकल एनर्जी ये मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट जो मूवमेंट होती है इस स्पिनिंग कॉइल की, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एंड दिस इज द होल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनामो. बहुत छोटे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, सो वी कैन नॉट यूज दिस डिवाइस और द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द हेवी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये छोटे छोटे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होते हैं, जैसे बाइसाइकिल, साइकिल्स में हमने डायनामो को देखा है एंड दिस डायनामो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इन अ स्मॉल स्केल बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यहाँ पे हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ लिया कि इन बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स, इन बिटवीन द परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स ये जो स्पिनिंग कॉइल होते हैं ये रोटेट होते हैं, इसी की वजह से इनके मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी शुरू हो जाती है एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन रीड बाय यूजिंग द वोल्टमीटर. So I hope the working principle of dynamo is very clear to all of you. In the next class, we will discuss the other concepts of electricity. If this class is really helpful and connecting to you, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for further notification. Thank you.